નમસ્કાર, મારું નામ છે કુણાલ અને તમે જોઈ રહ્યા છો રીતમ ન્યૂઝ. ઓનલાઈન ગેમ હવે યુવાનોના જીવ લઈ રહી છે. સોશિયલ મીડિયામાં શોર્ટકટથી કમાવા માટે હવે ઓનલાઈન ગેમો નવો રસ્તો બન્યા છે. ત્યારે યુવાનો ઓનલાઈન ગેમિંગ રમીને દેવાદાર બની રહ્યા છે, જેના કારણે તેમને સુસાઇડનો રસ્તો અપનાવવો પડી રહ્યો છે. રાજકોટમાં ફરી એક એવી ઘટના સામે આવી છે, જેમાં યુવાન સટ્ટો રમીને દેવાદાર બનતા આખરે તેને આપઘાતનો રસ્તો અપનાવ્યો છે. તો આવો લોકો પાસેથી જાણીએ કે તેઓ ઓનલાઈન ગેમ વિશે શું વિચારી રહ્યા છે. રાજકોટની અંદર ઓનલાઈન ગેમિંગના કારણે ફરી એક વ્યક્તિએ સુસાઇડ કરી લીધું છે. શું કહેવા માંગો છો? મેં બી વાંચ્યું છે એ ન્યૂઝ અને જોયું છે. પહેલી વાત તો એ બહુ ખોટી વાત છે કે કોઈ સુસાઇડ કરે છે. સુસાઇડ કોઈ પણ બાબતમાં કરવી જ નથી. ત્યાં ગેમિંગની લતના કારણે જે સુસાઇડ કર્યું છે છોકરાએ, એટલે એ કયા અંશે એનું ઉપર વીતતી હશે એ પ્રમાણે કર્યું સુસાઇડ. કેમ કે આપણે જોઈએ ત્યારે સમાજમાં જે એજન્સીઓ છે, જે કંપનીઓ છે, એ ખૂબ જ માર્કેટિંગ કરે છે કે તમે ઓનલાઈન ગેમિંગ કરો, ઓનલાઈનમાં પૈસા કરો. એની જે લિંક બી આપે છે, છતાં લોકોની માનસિકતામાં એમાં જતું રહે છે. એટલે છોકરા પાસે મોબાઈલ હોય કે છોકરી પાસે મોબાઈલ હોય, એ લોકો વહેલા તકે પૈસા કમાઈ લઈએ, એના કારણે એ લોકો રમતા હોય છે. એમને ખબર શું લાગે વહેલી તકે જે પૈસા કમાવાનું જે વળગણ છે, બરાબર, આ સોશિયલ મીડિયામાં જે દેખાઈ રહ્યું છે કે શોર્ટકટ અપનાવી લેવું ને, એના વિશે શું કહેશો? પહેલી વસ્તુ તો એ છે, બધાએ સમજવું છે કે જો આમનામ પૈસા મળતા હોય તો કોઈ કામ ધંધો રોજગાર કરતા જ ના હોય. એટલા માટે એવું કોઈ બી છોકરા હોય, બાળકો, યુવા, એમને એટલી જ વાત કહીશ કે કોઈ બી આ રીતે પૈસા મળે જ નહીં. કે કોઈ કંપની માર્કેટિંગ નહીં કરતી તો પૈસા કમાવા માટે કરતી હોય. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાની કે કોઈ ગેમિંગ એપ હોય, કોઈ પણ વસ્તુ હોય જેમાં પૈસાની લાલચમાં તમે રમતા હોય કે જોતા હોય કે સટ્ટો રમતા હોય એમાં ઓનલાઈન, એ ના જ કરવું જોઈએ. કેમ કે કોઈ કંપની તમને પૈસા આપવા માટે નથી બેઠી, પોતાનું બિઝનેસ બનાવવા માટે બેઠી છે. એટલે કોઈ તમને સહેલાઈથી 1, 2, 5 થોડા મળી જાય પહેલી વખત, પણ બીજી વખત છેલ્લી વખત પછી તમે એમાં પૈસા હારી જાય, પછી તમને બીક લાગે, એના કરતાં ના કરો તો સારું છે. અને મહેનત કરીને જ, કામ કરીને જ પૈસા કમાવો એ સારી બાબત છે. તો ઓનલાઈન ગેમિંગના કારણે જે લોકો સુસાઇડ કરી રહ્યા છે, પછી એમના જે પરિવારજનો છે એમના ઉપર કેટલી મુશ્કેલીઓ પડતી હોય? હવે એ તો જો હું એવું ના કહી શકું કેવી રીતે, પણ જેનો એકને એક લાલ હોય કે એને એકને છોકરી હોય, જો એ જતા રહે સુસાઇડમાં, તો એ મા બાપને જ વધારે ખબર પડે કે કેટલું એ કર્યું એ છોકરાની પાછળ કે છોકરીની પાછળ, એને જતા રહ્યા તો બહુ જ દુઃખ થતું હશે. અને કોઈ પૂરું બી ના કરી શકે. એટલે ખાસ કરીને તમારા જે છોકરાઓ છે એને એ જ વાત છે કે તમારા મા બાપનું વિચારો કે આવું કંઈ થઈ બી ગયું હોય કે પૈસા બી જતા રહે તો તમારા મમ્મી પપ્પાને કહો આ કદમ ઉઠાવતા પહેલા. એના હલ નથી સુસાઇડ કરવું. ઓનલાઈન ગેમિંગના કોઈ વિક્ટિમ સાથે વાત કરી હોય કે મળ્યા હોય એવું કોઈ ખરું? વિક્ટિમ સાથે વાત નથી કરી, પણ એક વસ્તુ છે, મારા ત્યાં એક બનાવ બન્યો હતો કે એક છોકરો એવું જ કંઈ 2-5 હજાર રૂપિયા હારી ગયો હતો. પણ એને ખબર પડી કે મારા મમ્મી પપ્પાને કેવું જોઈએ, તો એને એના પપ્પાને, એટલે પપ્પા જોડે વધારે કનેક્શન હતું, એને પપ્પાને કીધું તો એના પપ્પાએ બહુ પ્રેમથી સમજાવ્યું, બેટા આ બધાના લીધે પૈસાને મળતું નથી, એટલે તારે હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ તું ધ્યાન રાખજે. મોબાઈલ જોવી અલગ વસ્તુ છે ને ગેમ કરવું અલગ વસ્તુ, એટલે એમાં તારે કંઈ પૈસા મળવાના નથી, એટલે તું નેક્સ્ટ ટાઈમથી આવું ના કરતો. એટલે છોકરો બી સમજીને, મમ્મી પપ્પાએ સમજીને, એટલે પહેલાં જ 3 સ્ટેપ કરી લીધું. એટલે છોકરો આ સ્ટેપ સુધી ગયો નહીં કે સુસાઇડ કરી લે. જો એ વધારે પૈસા આવી જાય તો ટેન્શનમાં હોત કે ના કહું શું થશે, મમ્મી પપ્પા શું કહેશે, મમ્મી પપ્પા પર શું વીસશે, પૈસા ક્યાંથી લઈશ, તો એ વિચાર પછી એના સુસાઇડ કરે પર લઈ જશે. એટલે પહેલાં તો જો છોકરાઓ ના જ કરવું જોઈએ. અને જો કંઈ થઈ બી ગયું તો મમ્મી પપ્પા જોડે એટલીસ્ટ વાત તો કરો, કેમ કે તમારા મમ્મી પપ્પા છે, વાત કરશે તમને સમજશે. છોકરાએ સુસાઇડ નોટમાં લત શબ્દ વાપર્યો છે કે ઓનલાઈન ગેમિંગની લત લાગી ગઈ. શું લાગે છે આ લત શબ્દ કેમ વાપરે છે? એટલા માટે છે કેમ કે અત્યારે મોબાઈલનો એટલો હાઈફાઈ જમાનો છે ને કે લોકો સ્માર્ટફોન નોર્મલી બાળકો બી યુઝ કરતા જ હોય છે. અને ઘણી બાબતને એવું હોય છે કે જ્યારે છોકરાઓ ઉપયોગ કરે ત્યારે મમ્મી પપ્પા ધ્યાન નહીં આપતા. ઠીક છે, છોકરા ક્યારે યુથ હોય તો ભણતા હોય છે એવું, તો એ ધીમે ધીમે એના માટે બી લત લાગી જતી હોય છે કે ક્યારે એ પૈસા જીતે તો એને ખુશી છે કે ભાઈ હવે પૈસા જીતો, ફરી ક્યારે હાર્યો એના કાલે જીતીશ, પરમ દિવસ. અને એના માર્કેટિંગમાં એટલું બધું ઇન્વોલ્વ થઈ જાય છે ને કે ભાઈ તમે જીતશો, અને એવી રીતે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપે કે તમે આ કરશો તો 5,000 જીતશો, આ કરશો તો. એ લત એના લીધે છે. એને કન્ટિન્યુમાં પછી ઇન્વોલ્વ. શરૂઆતમાં તમને નાની અમાઉન્ટ આપે કે તમે જીતો, પછી તો એ તમે મોટી અમાઉન્ટ લગાવો છો એટલે તમે હારી જ જાઓ ને. પછી તમને આ શું થઈ ગયું, પછી એ તમારા પૈસા હોતા નથી ને તમને ટેન્શન થઈ જાય. ઓનલાઈન ગેમિંગ તરફ જે વળી ગયા છે યુવાનો, બરાબર, કાં તો વળવાના છે, પછી એ તરફ જોઈ રહ્યા છે, એવા યુવાનોને તમે શું સલાહ આપવા માંગો? એક જ સલાહ છે કે પહેલી વસ્તુ છે કે ઓનલાઈન ગેમિંગ, તમે મોબાઈલ જુઓ અલગ વસ્તુ છે, પણ ઓનલાઈન ગેમિંગ કરવી એ મફતની હોય તો ચાલે, પણ પૈસાનું થતું હોય તો એ વિચારી લેવાનું કે તમને ઠગવા માટે જ છે. એટલે ઠગાઈ કરવા માટે જ બેઠા છે લોકો, કે તમને કોઈ પૈસા આપવા માટે બેઠા કોઈ બી હોય.
તો એ તમે એની પર ના જ વળો, એની પર ધ્યાન બી ના આપો. ઘણી વખત માર્કેટિંગ બી આવે, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બી આવે કે તમે આ ક્લિક કરશો તો 1000 રૂપિયા જીતી જશો, 5 જણાને મોકલશો તો 10,000 આવશે, 10 જણાને મોકલશો. એ બધું વસ્તુ ખોટી છે. કોઈ તમને મફતના પૈસા આપવા બેઠા જ નથી. काफ़ी समय से लोग ऑनलाइन गेमिंग की तरफ मुड़ रहे हैं. राजकोट के अंदर अभी एक युवान जो है उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग की वजह से सुसाइड कर लिया है. क्या कहना चाहेंगे आप? ऑनलाइन गेमिंग और ये जितनी सारी डिजिटलाइज चीज़ें हो रही हैं, इसकी वजह से एक अलग अलग तरीके से किशोर किशोरियों पे, एडोलेसेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, फिज़िकली, मेंटली. तो अगर हम देखें फिज़िकली अगर बात करें तो अभी प्यूबर्टी बहुत जल्दी हिट कर रही है बच्चों को, जस्ट बिकॉज कि वो बाहर नहीं खेलने जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो बहुत ज़्यादा समय अपना फ़ोन में बिताते हैं. और इसके अलावा अगर ऑनलाइन गेमिंग का देखें तो साथ ही साथ एआई भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है, चीज़ों को ऐड कर रही है कि आपको वही डायरेक्ट कर रहा है कि आपको क्या करना है, नहीं करना है. आपके लिए बाहरी एरिया में कोई है नहीं बातचीत करने की, तो आप अपना सारा समय फ़ोन में बिताते हो. तो फ़ोन को आपने एक ऐसा साथी बना लिया है कि वो जिस तरीके से आपको घुमाता है, लेके जाता है, आप उस तरीके से जाते हो. दूसरा, इसकी वजह से जो है एक तरीके की इंडिविजुअलिटी जो है वो बढ़ रही है. हम एक दूसरे के साथ बाहर इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन बहुत समय अपना फ़ोन के साथ अलग अलग बिताते हैं, एक साथ बिताते हैं. इसकी वजह से फ़ोन में डिपेंडेंसी बढ़ गई है और ऐसे लत उसी तरीके की डिपेंडेंसी से आती है. आपने एक लत शब्द यूज़ किया है, और लड़के ने सुसाइड नोट के अंदर लिखा है कि मुझे इसकी लत लग गई थी, इसे छोड़ नहीं पाया. इसके बारे में क्या कहेंगे? लत जो शब्द है, लत लगने की बात वही मैं फिर से बताऊंगी कि जब हमारा बाहरी दुनिया से कनेक्शन बहुत छूट जाता है और हम मशीन जैसी चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं, जिसके पास अपना एक दिमाग नहीं है, अपना एक सोशल सेंस नहीं है. लेकिन अगर बाहर जाओ तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा. मशीन का सोशल सेंस नहीं है, तो जब आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो तो आपका भी एक बड़ा नज़रिया जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ मशीन पे आ जाता है, और जिसकी वजह से आपके पास कोप अप करने के लिए जो आपका वो लत है उसको छोड़ने के लिए जो सुविधाएं हैं वो बहुत कम उपलब्ध रहती हैं और आप बहुत अकेला फील करते हैं. मुझे लगता है इसकी वजह से ऐसे लोग ऑनलाइन गेमिंग जो है जल्दी से कमाना, शॉर्टकट, उसके बारे में क्या कहेंगे? ऑनलाइन गेमिंग की तरफ लोग काफ़ी मुड़ रहे हैं अभी, क्या कहेंगे उसके बारे में? शॉर्टकट, ये ऑनलाइन गेमिंग का जो शॉर्टकट है ये एक बहुत अलग तरीके का है, जिसकी वजह से दिक्कत ये आ रही है कि अब हम बहुत ज़्यादा बाहर दिमाग नहीं लगाते हैं. हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे शॉर्टकट से चीज़ें निकल के आ पाए, और शॉर्टकट का हमेशा एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है जो कि हार्मफुल रहता है ना. जितना हम शॉर्ट से शॉर्ट चीज़ों को करने लगते हैं उतना ही ज़्यादा जो है आपको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है. जो मेरा कहना है कि अगर थोड़ा स्लो में चलें, हम चीज़ें जैसे हैं उस तरीके से चले, पढ़ें, आगे बढ़ें, एक कोर्स करें और फिर पैसा कमाएं, तो वो ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा जो है जल्दी लाभ नहीं देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्म भी नहीं करेगा इस तरीके से. लड़के ने सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरा कर्जा हो गया था और अब मैं सुसाइड कर रहा हूँ. तो क्या कहेंगे इसके बारे में कि युवा जो है वो घर पे भी नहीं बता पा रहे इसके बारे में, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आजकल के युवा बहुत वही टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं, इसकी वजह से वो इतने आगे बढ़ जा रहे हैं, और टेक्नोलॉजी एक ऐसा लाभ और एक ऐसा लालच उनको दे रही है कि अगर आप हमारा गेम खेलते हो, आप इस तरीके से करते हो, तो आप अचानक से बहुत आगे बढ़ सकते हो. तो एम्बिशन लेके बहुत चलते हैं कि हम इस तरीके से करेंगे, ये वाला गेम खेलेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से वो अपना जितना सब कुछ उनके पास होता है, आर्थिक, वो अपना फिजिकल, मेंटल, सारी चीज़ें उसमें लगा देते हैं, दाव पे लगा देते हैं. और जब वो फिर उनके हाथ कुछ नहीं बचता है या तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो ऐसे कदम जो है फिर उठाते हैं. રાજકોટમાં ફરી એકવાર ઓનલાઈન ગેમિંગના કારણે એક યુવાએ સુસાઇડ કરી લીધું છે. સુસાઇડ નોટમાં લખ્યું છે કે મને માફ કરજો, મને ઓનલાઈન ગેમિંગની લત લાગી ગઈ હતી અને છોડી ના શક્યો, એટલા માટે હું સુસાઇડ કરી રહ્યો છું. ऑनलाइन गेमिंग के कारण एक जो युवा थे उन्होंने सुसाइड कर लिया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनेट का जो भी ट्रेंड है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, खासकर युवाओं के बीच में. मतलब खैर अभी का तो जो ट्रेंड है वो सारी एजेस में ही है, पर
तब भी एक ये अवेयरनेस होना चाहिए कि हम कैसे सोशल मीडिया या इंटरनेट को माइंडफुली यूज़ कर सकें, क्योंकि उसके भी दो पहलू हैं कि हम अगर उसको अच्छे से यूज़ करें तो उससे बहुत आगे जा सकते हैं, या अगर हम अलग अलग चीज़ों में पड़ जाएं तो फंस भी जाते हैं। और फिर अभी ये एक केस आप बता रहे हैं, ऐसे कई तमाम केसेस हैं जिसमें या तो लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, जिसमें या फिर लोगों ने सुसाइड अटैम्प्ट किए, या कुछ गेम्स भी पहले से डिज़ाइन हुए थे कि जो सीधे सुसाइड की तरफ लोगों को धकेल रहे थे। लेकिन ये गेम जो है जिस तरह से इनकी डिज़ाइन की गई या ऐड की जाती है, उसमें क्या लगता है कि लोग देखा देखी करने लगते हैं या पैसे शॉर्टकट कमाने का जो लालच है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल है, मतलब एक तो खैर इसका कारण ये भी होता है कि अभी हम लोग इतने अनएम्प्लॉयड हैं कि हमको लगता है कि जहाँ से हमारे पास पैसा सोर्स होगा हम वो कर लें। फिर उसमें अगर हमको और आसान तरीके नज़र आते हैं तो वो बिल्कुल हमारी तासीर होती है कि क्यों ना इसी को करके अपन लोग पैसा कमा ले, अगर ये हो रहा है तो यही कर लेते हैं। या जॉब के मार्केट में चीज़ों की इतनी कमी है, कई बार हमारे एजुकेशन में भी वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर ये जो सारी चीज़ें चल रही है हम उसमें इतना, मतलब वो ट्रैप में इतना फंस चुके हैं कि हम बाकी सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और हमको लगता है कि यही सही तरीका है आगे बढ़ने के लिए, तो इसी के साथ करते हैं। और फिर जो गेम्स बनाते हैं उनका भी अपना फ़ायदा होता है, और उन्हें भी पता है कि अगर हम ये सब करेंगे तो हमारे साथ यूथ अट्रैक्ट होगा और हमारी दुकान चल सकती है, पर वो ये नहीं परवाह कर रहे हैं कि क्या उसके ऊपर मतलब इम्पैक्ट होगा यूथ के ऊपर, वो कैसा फील, मतलब उनकी फैमिलीज पे क्या इम्पैक्ट होगा, लोगों को ये कहाँ पे ले जाके छोड़ेगा। और मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा हमारे पास सारी लीगैलिटीज़ भी होनी चाहिए ऑनलाइन चीज़ों को लेकर, जो ये इस तरीके के जो गेमिंग्स डेवलप हो रहे हैं उसको लेकर के एक पूरा सेट ऑफ पॉलिसी हो, रूल्स हो कि किस तरीके के आप गेम बना सकते हैं, क्या उसमें रूल्स हो सकते हैं, क्योंकि वो लोगों के पास भी अपनी चीज़ें होनी चाहिए अगर वो क्लेम करना चाहते हैं। कभी कभी ये हो रहा है कि लत के कारण लोग छोड़ नहीं पा रहे, और उसके बाद फैमिली को ये भुगतना पड़ता है, लड़के सुसाइड कर लेते हैं लेकिन बाद में पैसा भरना फैमिली को पड़ता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो एक तो मुझे लगता है कि फैमिली का बॉन्ड भी इस तरीके से होना चाहिए, वो दोनों तरफा है कि कई बार आप पेरेंट्स को शेयर नहीं कर पाते क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से नहीं है, आप जानते हैं कि आप गलत हैं, पर तब भी गलत होने के बावजूद भी हम अपने किसी भी परिचित को या किसी भी जो भी हमारा अच्छा चाह रहा हो उसको, पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें शेयर कर पाए, पर ऐसा लैक हो जाता है कई बार, पेरेंटिंग में भी वो चीज़ें छूट जाती हैं, तो उन सारी चीज़ों को मुझे लगता है थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। और ऑब्वियसली जो ट्रैप हुआ है उसने तो मतलब अपनी पूरी जान की कीमत चुका दी है, पर फैमिली जो पीछे रह जाती है उसको काफ़ी लंबा भुगतना पड़ता है। कई बार होता है एक ही लड़का है या एक ही बच्चा है, तो फिर क्या करेगी फैमिली फिर? इस तरह से ऑनलाइन गेमिंग जो खेल रहे हैं या फंस रहे हैं, ऐसे युवा को क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि गेम्स आप खेल सकते हैं, वो भी एक एंटरटेनमेंट का जरिया है, पर उसको थोड़ा माइंडफुली खेलें कि गेम को हम सिर्फ गेम्स की तरह लें, हम उसको ये ना लें कि हमको इससे पैसा मिल जाएगा या इससे हम कुछ आगे कर लेंगे। आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे जा सकते हैं, पर गेम्स को हम अगर एंटरटेनमेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं तो उसको सिर्फ अपने टाइम में से कुछ देर, अपने दिन भर के टाइम में से कुछ देर निकाल के उसको खेल सकते हैं, क्योंकि फिर हमारी जो बाकी सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जो छूटती हैं दिन भर फ़ोन में लगे रहने से या दिन भर गेम में लगे रहने से, वो उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे? आपको नहीं पता होता कि आपके आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं, आपको ये नहीं पता होता कि देश की राजनीति में क्या चल रहा है, आपको ये नहीं पता कि देश की आज की ताज़ा खबर क्या है, पर आपको गेम के बारे में ज़रूर पता होगा। तो मुझे लगता है हमको चारों दिशाओं में देखना चाहिए, अपडेट रहिए, फ़ोन यूज़ कीजिए, इंटरनेट यूज़ कीजिए, गेम भी खेलिए, पर इस तरीके से खेलिए कि कम से कम आप उसमें फंसे ना। और क्योंकि अभी तो पूरा आप ऑनलाइन फ्रॉड्स चारों तरफ देख रहे हैं कि हम कुछ क्लिक करेंगे और हमारे साथ क्या हो जाएगा हमको नहीं पता, तो वो सारी चीज़ें भी। और क्योंकि हम इंटरनेट इतना यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट पे जाने से नुकसान क्या होगा, कहाँ से बच सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो सारी चीज़ें भी एक बार अपने दिमाग में रख के चलिए, उनको थोड़ा पढ़िए, समझिए और फिर इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स पे आगे बढ़िए।